आज हम लोग बात करते हैं रिवर्सल ऑफ कार्ड्स के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप सबको कभी ना कभी ये आएगा अपनी रीडिंग्स में और अपने स्प्रेड्स में। तो हाउ टू डील विद इट? ओके, सी इट्स बेसिकली एन अप्रोच। इसका एक मेथड होता है कि आप एक एक कार्ड का रिवर्स मीनिंग जो है वो मेमोराइज कर लें, और वो मुश्किल होता है क्योंकि क्या होता है कि जो रिवर्स मीनिंग होता है ना, I will tell you, I will go through all the cards. I will tell you the reverse meanings also. बट बिगनिंग जो इंट्रोडक्शन में करूंगी इस टॉपिक की, वो ये कहूंगी कि इसकी ना अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस टाइम पर जब कार्ड 8 या 10 कार्ड्स के बीच में एक रिवर्स कार्ड आपका आएगा ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा रिवर्स मीनिंग, कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है वहां पर। बेसिकली आपने जब उसको रिवर्सल को कार्ड को देखना है, पहली बात तो ये कि क्या टैरो रिवर्सल को कंसिडर करना है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। और कई जगहों पे इंटरनेशनली जो है वो टैरो रिवर्सल को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, देयर आर सम टैरो रीडर्स स्पेशली इन द यूएस एंड कनाडा हु डू नॉट लाइक टू टेक टैरो रिवर्सल्स। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. It's an incomplete practice because you are not paying attention to the signals that the tarot cards are giving you completely. Because number one, you may lack the knowledge of how to deal with such cards, and second would be that probably you do not have the courage to connect that card to the other cards. Okay, it is like a puzzle. When you have a reversed card in the middle of other upright cards, it is like a puzzle. Okay, it's not a straight interpretation. So because we are masters and we fear nothing, and we are now masters of our throat chakra, so our communication should be very clear. And part of being clear in your communication is reading the card as it comes out in the spread. Okay, so before shuffling your cards, please make sure all your cards are one way upright. Try to make sure. Another thing here is that if you do a spread and you get 2 or 3 cards which are reversed, then that is not a signal. It just means you need to reshuffle your cards. Your cards have not been laid in properly. Okay, but if you get one card or maybe 2 cards in a larger spread which is reversed, please take it seriously. Okay, it's a signal from the universe. So there is this chapter 2 in your book number 2, that is entirely focused on tarot reversals. I want you to go through the entire chapter. Okay, clearly chapter 2 is about the introduction, and chapter 3 is all the 78 cards, the meanings are given. Now we'll start with why is a reversed card important to study. Reverse card means if this is upright, your card is standing upside down. Okay, it's come reversed in your spread. Now be aware. The first thing I have to tell you here is be aware when you get this one. Be aware. Okay, it's very important because your antenna should wake up when you see a reversed card. Reversed card means that there is something in the situation which is not clear right now to the mind or to your eye, and universe is telling you, sort of shaking you awake. Hello, please get up, listen to this signal. Something is here in this situation which is not being told to you completely, or somebody is telling you probably a falsehood. वो झूठ बोल रहा है आपसे, या आपसे सत्य या सच जो है वो छुपा रहा है. So there may be somebody concealing the truth from you. Somebody is telling you about their marital problem. They are not telling, they are only talking about what their spouse has done wrong. They are not saying anything about what they have done wrong, or maybe they have had a past to which the spouse is reacting. Because please remember, when in a tarot spread, one person is talking to you, it is their viewpoint, it is their perception. So when a opposite, which is called a reversed card or an ulta card, basically in Hindi it's called ulta card, but it's basically a reversed card. When it comes as a reversed card, you should be very, very careful. For me, it is like a ghatre ki ghanti. Okay, it means that something is there hidden. Actually, there is now some greater mystery to the situation, which I, as a tarot reader, have the knowledge and the expertise to find out what it is. Okay, it's a definite signal from the universe. So take it as a sacred sign. Again, it's a sign from the universe. So that means it is like a omen. So what we call the omen basically is, for hum log astrology mein we know this as omen astrology also. So this is omen. In Horari or in Prashna Kundli, you get a omen. This is the omen.
ओमन मीन्स दैट समथिंग इज देयर व्हिच यू नीड टू गो डीपर इनटू. इनफैक्ट आपको तो रिवर्स कार्ड और भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको और ध्यान से उसकी डेप्थ में जाना है. ठीक है. So personally, I take the appearance of a reversed card as a direct message to me by the divine. I am being held by the hand and taken gently and seeing that, look, there is something in this situation which needs to be investigated. So please do that. Okay. Now what happens is there is an energy imbalance. What does the reversal mean? Reversal literally means that there is a energy imbalance in the spread. Means that either the energy is in surplus, it is more than what is required, or it is lacking in that situation. यानी कि deficiency है. So either the energy is in surplus or it is in deficiency. And that is and many a times the reversal card will give you clue as to what remedy is required in this situation also, because that is one card showing you the imbalance in the situations. Okay. So reverse cards are a coded way of showing us the deeper picture of the situation, and it's telling you something that is not being right now told to us because of the biases of the querist. So reverse card is the secret tool available with the experienced tarot reader. You should understand it, and sometimes it can also give you the key to the solution or to the remedy of the problem being discussed. Now, how do you possibly interpret the reversed cards? How do you take them? Firstly, please understand tarot reversals are inevitable. And if you are talking to a tarot reader who does only straight readings and they say that I don't understand tarot reversals, I don't consider them, please don't talk to them again. Because what they are practicing, don't talk to them on a professional basis again, is what I'm saying. Okay. Because what they are doing is they are ignoring the tarot reversals because they are not confident of their mastery over their cards. If you are confident about your mastery and command, you can take on the card reversals. There is no problem. What does it mean now? Broadly, when we talk about the tarot reversals, if there is a card which is shubh or positive, जिसको हम लोग कहते हैं bright card, okay, when it comes reversed, then a shubh or a bright card, the energy gets reduced. Means अगर आपका कार्ड या एनर्जी, प्लीज अंडरस्टैंड कार्ड्स एज एनर्जी टेम्पलेट्स, अगर उस कार्ड की ऊर्जा शुभ है, अगर कोई कार्ड है जैसे सन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, या 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये सब आपके ब्राइट कार्ड्स हैं, राइट, पॉजिटिव कार्ड्स हैं. अगर ये रिवर्सल में आते हैं तो इसका मतलब है इनकी शुभता जो है वो कम हो रही है. द पॉजिटिव एनर्जी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो विच वी कॉल शुभता में कमी. Okay, so I'm using a little bit of an astrological language here. जैसे ग्रह हमारे शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, ऐसे कार्ड्स हमारे शुभ और अशुभ होते हैं. अशुभ एक्चुअली नहीं होते, लेकिन हम उनको डार्क कार्ड्स या ब्राइट कार्ड्स कहते हैं. तो उस कार्ड की पॉजिटिविटी या उस कार्ड की जो रिवॉर्ड्स हैं उनमें कमी आएगी. ओके. और दूसरी तरफ क्या होता है, जब आपका कोई डार्क कार्ड होता है, ठीक है, डार्क कार्ड में क्या होता है, आइदर द डार्कनेस गेट्स इंटेंसिफाइड. देखिए एनर्जी में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं जब एक कार्ड आपका रिवर्स में आता है. ठीक है, यू हैव टू सी. कोई डार्क कार्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है एंड इट्स रिवर्स्ड, you have to see the surrounding cards. Very important to see the surrounding cards, and also check on the mood or the atmosphere of the person who has come to talk to you. Because suppose 9 of swords is telling you person is very anxious or very worried. ठीक है, अब आपको बात करने पे ही लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा, इसको तो मतलब पैनिक अटैक होने वाला है. तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये एनर्जी आपको इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है. ठीक है ना. तो एक चीज आपको जो है वो सिम्टोमेटिक भी मिलेगी. सिम्टोमेटिक मींस आप क्वेरिस्ट से जब बात करोगे या उसकी हालत के बारे में आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लूज मिलेंगे. दूसरी चीज, यू सी द सराउंडिंग कार्ड्स. It will come in the surrounding cards that her situation is becoming worse or she is reacting very negatively to the whole situation.
ठीक है, तो डार्कनेस या तो इंटेंसिफाई होगी या फिर उसकी डार्कनेस जो है वो रिड्यूस होगी, विच मीन्स यहां पर क्या होगा, अशुभता में कमी हो जाएगी। तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। आपका टावर कार्ड है, रिवर्स में आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपका लेट्स से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से टावर इज रिवर्स्ड और उसके साथ आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, नाउ टावर रिवर्स्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड साइन। टावर रिवर्स मीन्स, देखिए टावर इज अ वेरी डार्क कार्ड, it is a definite loss. Tower reverse can mean either there is a, suppose a person is asking about medical treatment. Okay, he says ki my mother is not well and doctor has said that she will need more tests. So what do you see on her cards? Now tower is coming reversed. Firstly, tower is telling you that yes, there is a medical problem here. There is something which is serious here, and it is reversed. Now reversed can mean either that her problem can become worse, which means her illness can intensify, ज्यादा हो जाएगी, complications हो सकती हैं, सर्जरी रिक्वायर्ड हो सकती है। दूसरा क्या होता है कि 2 of swords, now we look at the next card. 2 of swords when it is coming, 2 of swords is talking about a choice. पहली बात तो swords आते ही आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट या डिसीजन मेकिंग का आपको रोल आ जाता है, which means कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन किसी पर्सन को लेना पड़ेगा, एंड अगर वो डिसीजन ठीक तरीके से लिया गया है तो टावर कार्ड का रिजल्ट पता चलेगा। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। व्हाई टावर इज कमिंग रिवर्स्ड, इट्स शोइंग दैट somebody is getting a chance to take an important decision regarding the treatment of this person. Maybe the doctor has said कि आप इनको इस पर्टिकुलर कंट्री में या इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की स्पेशलाइजेशन में ले जाइए, शी विल बी मच बेटर, बिकॉज इसका जो ट्रीटमेंट है वो वहीं पर होता है। Now this person is thinking. So अगर 2 of swords, that means अगर आपके पास इतनी पावर आ गई कि आप एक डिसीजन ले सकते हो, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर पावर है to make a difference in the person's health. Then you pull out another card if you want to. On top of that, to see कि अगर वो person 2 of swords में कहीं फंसा तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिखता है कि टाइमली डिसीजन लेना चाहिए। अगर टाइमली डिसीजन नहीं लिया फिर प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हो सकती है। सो टावर रिवर्स्ड हियर अशुभता में कमी दिखा रहा है, अशुभ सिचुएशन है लेकिन उसमें कमी लाई जा सकती है अगर आप ठीक टाइम पर ठीक डिसीजन ले सकते हैं उनकी ट्रीटमेंट को लेकर। दैट इज हाउ यू विल इंटरप्रेट द कार्ड्स। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी सी ब्रॉडली। ये आपको देखना पड़ेगा कि जब भी कोई कार्ड आ रहा है उसकी शुभता में कमी आ रही है या उसकी शुभता बढ़ रही है या शुभता कम हो रही है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। बट समवेयर जो उसका एक ट्रेडिशनल डार्कनेस या ब्राइटनेस है वो या तो बढ़ेगी, सरप्लस में जाएगी, या वो डेफिसिट होगी। ये आपको एक माइंड में अप्रोच लेके चलनी है। आपके मन में फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी ना, हम हर सिचुएशन को थोड़ी 1 बाय 1 कर सकते हैं, वो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि टैरो में देयर आर 30 लाख क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डिस्कस्ड थ्रू टैरो। 30 लाख क्वेश्चंस, ये मॉडर्न रिसर्च निकल कर आई है टैरो के अंदर जो कहती है 30 लाख, तो मतलब क्वेश्चंस लिस्टेड है। ये ओवरऑल कंपाइल की गई है एक वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट टैरो कैन आंसर। तो इससे आप समझ सकते हो कितनी जबरदस्त रेंज है। तो दैट मीन्स जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसी टाइम पर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बॉल को आपने कैसे खेलना है, क्योंकि हर बॉल यूनिक होगी। कौन आपके ऊपर बॉल फेंक रहा है उस टाइम पे, कैसा उसका मूड होगा, उसके प्लैनेट्स कैसे होंगे, उस पर डिपेंड करता है ना। तो आप पहले से नहीं सोच के रख सकते ये चीजें, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, फॉर्मूला क्लियर है तो यू वर्क इट आउट देयर ओनली। क्वेश्चन नोबडी नोज, formula you know, good student will always know the formula and they will do the correct calculation on the paper at that time itself। ठीक है, सो रिवर्सल को भी ऐसे ही लेके चलिए। और मीनिंग्स को भी मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, अभी भी मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं, मैम मीनिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, याद नहीं होते मीनिंग्स। याद करने की जरूरत नहीं है मीनिंग्स को। if you sit down and stress your mind about memorizing, it will not happen, because tarot to a large extent is a intuitive subject।
When you look at the picture, you look at the spread, you listen to the question, तब भी आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे. आप सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते because two twos will not always be equal to 4. ठीक है ना, 2 twos आपका 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग कार्ड्स. कैसे करोगे? ठीक है, तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके मन में क्लियर होंगे. इसलिए प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, सबके क्वेश्चंस लो. चलो अब आते हैं रिवर्सल के ऊपर और आगे देखते हैं रिवर्सल्स में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, तो रिवर्सल्स की सबको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया. अच्छा, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2, इसको जरा ध्यान से पढ़ो या समझो. रिवर्सल many a times indicates an opposing energy of the card as it means upright. अपराइट कार्ड का जो भी मीनिंग है जब वो रिवर्स में आता है, कहीं ना कहीं पर उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है. मीनिंग ऑपोजिट नहीं होता, एनर्जी ऑपोजिट होती है. अभी मैंने आपको बताया जैसे शुभ है, अगर ब्राइट है, रिवर्स हो गया तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी. जो सक्सेस या जो प्रमोशन आपको मिलने वाली थी वो कुछ टाइम के लिए डिले हो जाएगी, रुक जाएगी. सपोज विल आई गेट प्रमोटेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड सन कम्स रिवर्स्ड. Please remember card is sun, so abhi bhi the answer is moving towards a yes because it's a question about promotion. But because it is reversed, it means that there are some obstacles on the way, so therefore there is going to be a delay. सीधा अगर आपका सन कार्ड आता तो आपको इमीडिएट सक्सेस मिलती बिकॉज आपका तो घोड़ा इज भाग रहा है. पर यहाँ पर क्या हुआ ना, उल्टा आने से अभी घोड़ा रुक गया आपका. सो दैट इज व्हाई अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक for example if the upright card is denoting action, suppose आपका 2 of wands है या फायर एलिमेंट है, suppose 2 of wands है, 3 of wands है, वो आपका रिवर्स में आ जाता है. अगर वो स्ट्रेट है तो इट मींस दैट यू विल गेट सक्सेस वेरी फास्ट. लेकिन अगर वो रिवर्स में आता है तो ऑपोजिंग एनर्जी आ जाती है, मींस सिचुएशन विल बिकम क्वाइट. क्वाइट हो सकती है या डिले हो सकती है या उसके अंदर आप इतना एक्शन अभी नहीं देखोगे या किसी का एम्बिशन लेवल जो है वो एकदम कम हो जाएगा. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी एम्बिशियस, अगर वो रिवर्स में आएगा इट शोज अ लो एम्बिशन लेवल. ठीक है, तो रिवर्स को इस तरीके से पढ़ना है. सिमिलरली अगर आपके अपराइट कार्ड कॉन्टेम्पलेशन या पॉज का है, फॉर एग्जाम्पल हाई प्रीस्टेस आपकी जो है वो कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है, सोच विचार के काम करो, वो रिवर्सल में आ जाती है. वो आपको कह रही है कि इस टाइम पर हमारे को ये वाली एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए रिवर्सल की. सिचुएशन इज वेरी एक्टिव और यहाँ पर बहुत ज्यादा या तो इमोशन हो रहा है या बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू मीट दैट एक्टिव एनर्जी. ठीक है, तो जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स हो गए, ये सब हमारे कार्ड्स ऐसे हैं जो हमारे को पैसिव कार्ड्स कहलाते हैं. ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ये सारे. तो ये जब उल्टे आते हैं इसका मतलब एक्शन. सो क्वाइट कार्ड विल बिकम एक्टिव, एक्टिव कार्ड विल बिकम क्वाइट. ओके, विल टेक इट लाइक दिस आल्सो. Now let's take up the cards. Okay, let's do the cards one by one. यहाँ पे मैं आपको सारे कार्ड्स की स्लाइड एक बार दिखा रही हूँ जिससे कि आपके सामने पिक्चर रहेगी कार्ड की और इसको आपने इमेजिन करना है कि ये रिवर्स में आ रहा है. ठीक है, बुक 2 के अंदर चैप्टर 3 के अंदर सारे कार्ड्स का रिवर्स वो दिया हुआ है, रिवर्सल दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, मैं एक बार जस्ट दिखा देती हूँ आपको. ये देखो चैप्टर 3 है, ये बुक 2 का ग्रीन वाली जो बुक है उसका चैप्टर 3 है ये. इसमें सारे कार्ड्स का आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सारे 78 कार्ड्स का, लेकिन ये सेल्फ स्टडी है क्योंकि हर कार्ड के मल्टीपल मीनिंग्स दिए हुए हैं. ये देखो रिवर्स मीनिंग्स दिए हुए हैं हर कार्ड के. ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स है, हर मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन हर सिचुएशन में हर मीनिंग नहीं होगा. यू हैव टू सी, यू कैन इवन कम बैक एंड रेफर टू दिस लिस्ट. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. आपके सामने कोई स्प्रेड है, आपको लगता है कि अच्छा मैजिशियन मेरा ऑपोजिट आया है, तो लेट मी चेक व्हाट इज द मीनिंग. तो इनमें से कोई ना कोई मीनिंग आपको उसमें से अप्लाई कर जाएगा. ठीक है, तो ये आप अपनी चेकलिस्ट की तरह रख सकते हो और बुक को रेफर करने में कोई एम्बेरसमेंट नहीं है. ठीक है ना, बड़े से बड़े डॉक्टर्स होते हैं, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने ग्रंथ को रेफर करते हैं. कई बार आपने देखा होगा दोबारा से श्लोक पढ़ते हैं, दोबारा से इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं. तो कभी आपको अगर अपनी बुक को रेफर करने की जरूरत पड़ती है क्लाइंट के सामने, प्लीज डोंट फील एम्बेरस्ड.
say I want more clarity, let me go back to my original document or my original reference book. It's a reference book, है ना? तो डॉक्टर्स भी कई बार रेफरेंस बुक देख के, वकील होते हैं वो रेफरेंस बुक्स देख के वो ही सब देते हैं ना वर्डिक्ट। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप जजमेंट दे रहे हो, आप डिसीजन दे रहे हो किसी को, है ना? तो बी वेरी श्योर, अपने सारे मीनिंग्स पढ़ो, फिर आपको जो सही लगता है अब वही अप्लाई करो, जल्दी में मत रहो। ये मत सोचो कि मैंने एकदम से आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई वाइवा नहीं हो रहा आपका, कि यू नो यू हैव टू टॉक इमीडिएटली व्हेन अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू यू। टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम, speak slowly, speak intelligently, speak confidently. Okay, so let's start with तो ये तो सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है?